So welcome to the students. Now this is the new topic, that is the Rankine formula for calculating the buckling load in the column. But इससे पहले जो what we have discussed about the Ehlers formula of the buckling, you know that Ehlers formula of the buckling that gives the correct result in case of the long column, that is very long column. जो Ehlers formula हमने पीछे ड्राइव किया था, on the basis of that formula we can calculate the buckling load for the long column or very long column. What in short columns, that Ehlers formula is not applicable. You understand? Short column के लिए वो formula applicable नहीं था. Now we have the short columns also. We have the intermediate columns also, which is neither long nor short, you can say, that is intermediate type of columns, short columns. And as we have already discussed when I was discussing about the Ehlers theory of buckling, that short column that fails by crushing, वहाँ पे उतना ही हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट कॉलम्स जो है वो क्रशिंग से फेल होते हैं, ना कि वो buckling से फेल होंगे. You understand? So short column that fails by the crushing. But now Rankine, another scientist, he came into the picture and performed various type of experiments, and on the basis of that performance in the experiment he has given the formula which is called the Rankine formula, and that is applicable for both type of columns, that is long column, short column, or you can say in also intermediate type of columns, right? तो Rankine ने एक ऐसा फार्मूला दिया जो Ehlers थ्योरी ऑफ बकलिंग था, वो हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? लॉन्ग कॉलम के केस में. बट शॉर्ट कॉलम के केस में आपकी Ehlers थ्योरी ऑफ बकलिंग वो फार्मूला यूज़ नहीं करते. यू अंडरस्टैंड? सो अगर हमें शॉर्ट कॉलम्स के बारे में क्रिपलिंग लोड वी हैव टू फाइंड आउट और बकलिंग लोड वी हैव टू फाइंड आउट. So for that purpose, Rankine has given the formula which is named as Rankine formula, and that formula कहाँ से उसने लिया? On the basis of the performance of the different type of experiments which he performed, and on the basis of that experiments he has given the empirical formula. वो क्या कौन सा फार्मूला था? That is empirical formula. तो हम डिस्कस करेंगे आज जो मेरा लेक्चर है, that is Rankine फार्मूला. यू अंडरस्टैंड? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि Rankine फार्मूला जो है, ये जो फार्मूला हम लेंगे Rankine, साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते भी जाएंगे. Rankine's फार्मूला इज एप्लीकेबल. Rankine formula is applicable for both types of column, both types of column, that is long column and short column. You understand this point? Rankine formula is applicable for both types of the column, that is long column and short column.
Reason is, which we have already discussed, that is Euler's formula or Euler theory of buckling. In that case, that theory of buckling or that formula, Euler formula, that gives the correct result in case of long or very very long column, right? वहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? Euler theory of buckling, the Euler formula that is used for the long column. But the problem is that Euler theory of buckling or Euler formula that doesn't cover the short column. Short column में का अगर हमें बकलिंग लोड निकालना है, क्रिपलिंग लोड निकालना है, so for that purpose we don't use that formula. We cannot use that formula because that formula is applicable for long column only. You understand? So for short columns, तो आप कह सकते हैं, so for short column, Rankine has given the formula. That formula he has taken on the basis of the various type of the experiments which he performed, और जो उसका conclusion था, he has given that empirical formula. That empirical formula जो था, that is applicable for both type of columns, that is long column or short column. तो अब as per Rankine, जो Rankine ने फार्मूला दिया था, as per Rankine, जो empirical उसने different type of experiments किए, on the basis of that experiment he has given एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया था उसने, दैट इज 1 p इज इक्वल टू 1 pc प्लस 1 pe. तो ये उसने एक इक्वेशन दिया, ये फार्मूला दिया, एंड दैट दिस फार्मूला और यू कैन से दिस इक्वेशन विच ही हैज़ गिवन हियर, ये कहाँ से उसने ये इक्वेशन फाइंड आउट की? बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस ही हैज़ गिवन दिस एम्पिरिकल फार्मूला. दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला, एंड दिस फार्मूला, ये जो आपका फार्मूला है 1 p इज इक्वल टू 1 pc प्लस 1 p, तो इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं. तो p क्या है? buckling load or crippling load, you can say crippling load as per Rankine. You understand? Rankine के बेसिस के ऊपर क्या है? This is P is the crippling load और buckling load, दोनों सेम है. crippling load given by Rankine. P जो है that is crippling load given by Rankine. You understand? PC, what is your PC? PC is the crushing load. PC क्या है आपका? crushing load, right? A आप कह सकते हैं, A is the area of cross section of the column, right? जहाँ पे लिख लेते हैं area of cross section, area of cross section of column. You understand? And PE इधर लिख लेंगे हम,
तो PE क्या है? व्हाट इज योर PE? बकलिंग लोड गिवन बाय द PE, दैट इज द बकलिंग लोड गिवन बाय द एल्वर फार्मूला। आर बकलिंग आर क्रिपलिंग, जब मैंने क्रिपलिंग लिखा तो सारा क्रिपलिंग ही लिखे, क्रिपलिंग लोड given by errors. You understand? Right? Crippling load given by the errors. And this equation number 1, जो उसने equation number 1 दिया था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1, पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1 जो दिया था एज पर रेनकाइन, और दिस इज द रेनकाइन फार्मूला, आप कह सकते हैं 1/P, दिस इज इक्वल टू 1/PC प्लस, ये सीधा लिख लो। सो दिस इज 1/P इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE, राइट? सो दिस इज योर, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द रेनकाइन formula. You understand? This is applicable for both types of columns, right? That is long column and long columns and short column. You understand? You understand this? तो ये आपको पता लगा कि what is the importance of the Rankine formula? Why the Rankine has given another formula? Reason is the formula which is given by the Ehlers, वो तो सिर्फ आपका क्या कवर करेगा? That is the long column only. अगर लॉन्ग कॉलम का आपने क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करना है, बकलिंग लोड फाइंड आउट करना है, तो वो फार्मूला एप्लीकेबल होगा फॉर द लॉन्ग कॉलम. नाउ द प्रॉब्लम अराइजेज देयर, बट अबाउट द शॉर्ट कॉलम, how we will calculate, what is the exact formula to calculate the crippling load or buckling load in case of short column. This is the problem. So this problem जो अराइज हुआ था, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए रैनकाइन एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए एंड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया 1/P, दिस इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE. जो P क्या था? क्रिपलिंग लोड गिवन बाय द रैनकाइन. क्या एज पर रैनकाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ crippling load? That is denoted by P. PC, that is crushing load, और crushing load तो आपको पता है, crushing load this is equal to sigma C into A. अब sigma C क्या है? That you can say crushing stress or you can say yield strength, right? Ultimate stress. तो sigma C into A. This is the crushing load where A is the area of cross section of the column. This is given as, and this equation which he has given, that is applicable for both type of columns, that is long columns and short column. You understand? यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लिया आपने? तो ये इक्वेशन रहने देंगे, ऊपर लिख लेंगे, बाकी मिटा देते हैं सारा.
सो फार्मूला रैनकाइन लिख लेते हैं, दैट इज 1 अपॉन पी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पी। यू अंडरस्टैंड, दिस इज द इक्वेशन। अब देखिए, फ्रॉम दिस इक्वेशन how we will calculate, or you can say that how this equation relates to both type of columns, that is the long column or short column. You understand? For a given material, suppose column है आपका, that is made up of the given material. कोई भी material आपके पास है, mild steel है, wrought iron है, cast iron है, उसका, you understand? तो उसका जो yield strength होगा, yield strength suppose the column is made up of the certain material, कोई भी मटेरियल का कॉलम है, तो उसका जो yield strength होगा R, जो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होगा, इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल, राइट। yield स्ट्रेंथ या क्रशिंग स्ट्रेंथ, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इज कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं ना होगी। सपोज अगर ये माइल्ड ये आपका स्टील का है, तो इसका जो yield स्ट्रेंथ होगा दैट इज़ 250 MPa। इस तरीके से अगर जो डिफरेंट मटेरियल्स का होगा तो उसकी yield स्ट्रेंथ क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। yield स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट। अगर yield स्ट्रेंथ क्रशिंग स्ट्रेंथ कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो आपका क्रशिंग लोड है, देयरफॉर क्रशिंग लोड क्या आपका PC is the crushing load, that is also constant, because this is sigma C into A, crushing load, this is equal to sigma C into A, and sigma C is constant, as I told you that the crushing strength or the yield strength is constant for given material। ये लिख लो, for गिवन मटेरियल, कोई भी मटेरियल के जो आपको कॉलम का दिया होगा उसमें आपकी जो yield स्ट्रेंथ होगी या क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी दैट इज कांस्टेंट। A, what is A? A is the area of cross section of the column, and the area of cross section of the column that is also constant। तो J आपका सिग्मा C कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रशिंग लोड इज आल्सो कांस्टेंट, crushing load is also constant। जो क्रशिंग लोड की वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें अगर क्रशिंग लोड की वैल्यू कांस्टेंट है एंड इफ आई इग्नोर द वैल्यू ऑफ द क्रशिंग लोड, कांस्टेंट वैल्यू तो मैं इसको इग्नोर कर लूँ, निगलेक्ट कर देता हूँ, तो इग्नोर दिस वैल्यू, निगलेक्ट द वैल्यू ऑफ PC, so therefore you can say अगर इस इक्वेशन को हम देखें, J वैल्यू तो आपकी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, therefore the value of P, this is constant,
तो इसका मतलब जो आपका वैल्यू ऑफ पी क्या था, पी इज द क्रिपलिंग लोड बाय द रेनकाइन फार्मूला। तो वैल्यू ऑफ पी दैट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन पीई, किसके ऊपर करेगी। इस केस में जो आपका क्रिपलिंग लोड होगा इन केस ऑफ रेनकाइन फार्मूला, वो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पीई के ऊपर। पीई क्या है, दैट इज द बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड बाय द एलोर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग और एलोर फार्मूला। तो पीई आपका क्या है, यहाँ पे अगर मैं पीई लिखूँ, पीई this is equal to pi square EI minimum upon LE square, you understand। तो किसके ऊपर वैल्यू आपका क्रिपलिंग लोड का वैल्यू किस पे डिपेंड होगा, आपका पीई के ऊपर। और पीई क्या है, दे पाई क्या है, दिस इज कांस्टेंट, ई दैट इज द यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, that is also constant because the elasticity of the material column is made of certain material, given material जो होगा उसका elasticity क्या होगा, constant होगा। जो इसका movement of inertia आएगा, shape and size किसी column का fix है, तो उसका जो movement of inertia है इसकी value भी क्या होगी, constant होगी, you understand। so all these terms ये जो आपकी हैं ये भी ये क्या होंगी, constant होगी, right। So you can say, or therefore PE proportional to 1 upon LE square, you understand। तो बकलिंग लोड किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन केस ऑफ एलोर थ्योरी, ये तो आपको पता है, दैट डिपेंड्स अपॉन 1 upon LE square। बट P जो वैल्यू ऑफ द बकलिंग लोड P है, विच इज गिवन बाय द रेनकाइन, दैट इज द क्रिपलिंग लोड गिवन बाय द रेनकाइन, दैट डिपेंड्स अपॉन PE एंड PE डिपेंड्स अपॉन LE। तो जहाँ से गेम आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी इफेक्टिव लेंथ के ऊपर, यू अंडरस्टैंड। LE क्या है, व्हाट इज LE, LE इज द इफेक्टिव लेंथ, effective length of column। तो हम इफेक्टिव लेंथ से ही तो बता सकते हैं कि कॉलम आपका लॉन्ग है, कॉलम आपका शॉर्ट है। तो वैल्यू ऑफ P और यू कैन से क्रिपलिंग लोड, दैट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लेंथ विच इज गिवन बाय द रेनकाइन, क्योंकि रेनकाइन ने जो क्रिपलिंग लोड का वैल्यू दिया था वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पीई के ऊपर। बिकॉज जो आपका क्रशिंग लोड था इस इक्वेशन में, क्रशिंग लोड तो आपका कांस्टेंट है, क्रशिंग लोड तो वेरी करेगा नहीं, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिपलिंग लोड है वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड इन केस ऑफ एलोर फार्मूला। और जो एलोर फार्मूला में पीई है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द effective length of the material, you understand। so that depends on the effective length of the material, effective length of the column, right। so इसका मतलब ये effective length of the column के ऊपर डिपेंड करेगा, you understand। जहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं इसको बिठा देते हैं। सो फर्स्ट केस ले लें हम, इफ द कॉलम इज शॉर्ट। आइए ये फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट,
if the column is short, अगर आपका कॉलम शॉर्ट है, मीन्स फॉर शॉर्ट कॉलम के केस में, तो जो आपका इफेक्टिव लेंथ होगा दैट इज LE. दिस इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम. तो यू कैन से LE इज आल्सो स्मॉल. अगर आपका कॉलम शॉर्ट है तो LE की जो वैल्यू होगी क्या होगी? स्मॉल होगी. अगर LE आपका स्मॉल है, बिकॉज बकलिंग लोड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LE स्क्वायर. इफ द वैल्यू ऑफ LE इज स्मॉल और वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो आपकी बकलिंग लोड की वैल्यू होगी, PE की वैल्यू, दैट इज वेरी वेरी लार्ज. You understand? Because this is inversely proportional. That is very तो अगर वो स्मॉल है तो बकलिंग लोड की वैल्यू लार्ज होगी. मीन्स हमें बहुत ज़्यादा बकलिंग लोड लगाना पड़ेगा, शॉर्ट कॉलम पर लोड लगाना पड़ेगा ताकि वो शॉर्ट कॉलम आपका क्या करे? बकल करे, क्रिपल करे. तो P जो आपका है वेरी वेरी लार्ज होगा अगर आपका इफेक्टिव लेंथ दैट इज वेरी स्मॉल. यू अंडरस्टैंड? तो 1/J 1/PC. तो आप कह सकते हैं ये जो आपकी इक्वेशन थी 1/P, PC तो आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. इसको हम निकाल दें, सॉरी, इसको हम निकाल देते हैं. तो 1/P दिस इज इक्वल टू 1/PE, क्योंकि जो आपका क्रिपलिंग लोड बाय रैनकाइन है दैट डिपेंड्स ऑन PE ओनली. PC तो आपका निकल गया. अगर आपका PE वेरी वेरी लार्ज होगा, राइट, तो 1/PE क्या होगा? 1/PE आगे इधर लिख लेते हैं. राइट, एंड जस्ट सी हियर, मैंने लिखा PE वेरी वेरी लार्ज, देयरफॉर 1/PE क्या होगा? इज वेरी वेरी स्मॉल. तो आप कह सकते हैं कि अगर P आपका लार्ज है, इन केस ऑफ दिस इफ योर इफेक्टिव लेंथ इज स्मॉल, P आपका क्या होगा? वेरी लार्ज होगा, बिकॉज PE प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिख लीजिए आप, PE प्रोपोर्शनल टू 1/LE स्क्वायर. यही इक्वेशन थी. PE आपका किसके प्रोपोर्शन है? तो अगर LE आपका स्मॉल था तो P आपका वेरी वेरी लार्ज हुआ. सो दिस इज द इक्वेशन. और अगर इक्वेशन में हम 1/PE इज वेरी स्मॉल, तो आपका 1/P क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा. यू अंडरस्टैंड दिस? तो आप कह सकते हैं 1/PE बहुत स्मॉल है, कैन बी नेग्लेक्टेड. तो इसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसको रहने दीजिए. तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या बनेगा? नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या होगा? दैट इज 1/P इज इक्वल टू 1/PC. यू अंडरस्टैंड?
पी 1/P क्या हो गया, इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया इक्वेशन से, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई फर्स्ट 1/P इज इक्वल टू 1/PC आर। P आप कह सकते हैं अप्रोचेस टू PC, राइट। जो P की वैल्यू है दैट अप्रोचेस टू PC आर PC। तो जहाँ से हमें ये मिला, सिंस द क्रिपलिंग लोड, P क्या है, क्रिपलिंग लोड गिवन बाय द रेनकाइन फार्मूला दैट इज इक्वल और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द क्रशिंग लोड, राइट। वो किसके बराबर होगा, क्रशिंग लोड के बराबर होगा। हैंस वी कैन से that the short column that fails due to crushing. You understand? Short columns fail due to crushing because P approaches to PC, तो इसका मतलब है crippling load P given by Rankine crippling load given by Rankine, this is equal to crushing load of the column, right? This is equal to crushing load that is PC, तो ये P था, right? So thus short column, so we can say that short column that fails by crushing. You understand? तो जहाँ से हमें वो चीज़ हमारी क्लियर हो गई, जैसे मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि लॉन्ग कॉलम तो बकलिंग में आपका फेल होगा, लेकिन शॉर्ट कॉलम आपका बकलिंग में फेल नहीं होगा, राइट। तो इसमें आपने क्रिपलिंग, इसमें आपने वी हैव यू कैन से कैलकुलेटेड दिस थिंग, वी हैव फाउंड दिस थिंग दैट short columns fail by the crushing because the first condition which I have taken that is the column is short। और मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़, ये जो इक्वेशन है ये इफेक्टिव लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो शॉर्ट के केस में तो हमने फाइंड आउट कर लिया दैट फेल्स बाय क्रशिंग। नाउ कम्स टू द लॉन्ग कॉलम, और लॉन्ग कॉलम के केस में तो आपको पता है कि वी हैव ड्राइव्ड द एलोअर्स फार्मूला एंड दैट फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द लॉन्ग कॉलम। तो जहाँ पे हम उसको हम बकलिंग लोड इन केस ऑफ एलोअर वी आर डिफाइनिंग दिस बाय PE। हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पे PE। तो आप देखते हैं कि इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम तो हमारा क्या इक्वेशन आएगा, यू अंडरस्टैंड। तो केस फर्स्ट तो हमने ले लिया, अब आ जाइए केस सेकंड के ऊपर। केस सेकंड, इफ द कॉलम इज लॉन्ग, राइट। तो केस सेकंड क्या है, if the column is long, you understand, लॉन्ग कॉलम के केस में तो जैसे आपको पता है कि अब जो आपका PE है लॉन्ग कॉलम के केस में बकलिंग लोड, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम LE स्क्वायर। सो जैसे मैंने आपको बताया जे कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं PE जैसे पहले भी बताया प्रोपोर्शनल टू 1/LE स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। तो ये इक्वेशन बना था
PE किसके ऊपर डिपेंड होता है? इफेक्टिव लेंथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों केसेस में जो रोल प्ले करेगा आपका, तो वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम करेगा। अगर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम ज़्यादा होगी, अगर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो बकलिंग लोड आपका क्या होगा? कम होगा। यू अंडरस्टैंड? तो आप कह सकते हैं इफ द कॉलम इज लॉन्ग, तो जहाँ पे क्या होगा? देन द इफेक्टिव लेंथ then the effective length is very large. लॉन्ग कॉलम के केस में आपका इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा होगा। तो अगर इफेक्टिव लेंथ आपका ज़्यादा है, PE प्रोपोर्शनल टू LE स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो होगा कि वैल्यू ऑफ द PE स्मॉल होगा। यू अंडरस्टैंड? वैल्यू ऑफ द PE क्या होगा? जितना ज़्यादा लंबा कॉलम होगा, आपकी जो बकलिंग लोड का जो वैल्यू है वो क्या होगा? लार्ज है। तो जहाँ पे क्या होगा? PE आपका क्या होगा? स्मॉल होगा। यू अंडरस्टैंड? PE इज स्मॉल, राइट? वैल्यू ऑफ PE स्मॉल। अब देखिए, PE की वैल्यू आपकी क्या होगी? स्मॉल होगी। लेकिन एज पर रैंकिन द इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन 1/P, दिस इज इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो PE अगर स्मॉल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/PE, what is that? Is very very large. 1/PE is very very large because it is inversely, ये हम क्या कर रहे हैं? PE स्मॉल है तो 1/P क्या होगा? रिवर्स होगा इसका। दिस इज वेरी वेरी लार्ज। large enough as compared to 1/PC. You understand? तो अगर हम 1/PC से ये जो इक्वेशन है इसमें कंपेयर करें तो जो 1/PE की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। यू अंडरस्टैंड? तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका 1/PC है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? सो 1/PC कैन बी नेग्लेक्टेड। सो यू कैन से देयरफॉर इस केस में 1/PC कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी? नाउ equation first becomes, what your equation first become? That is 1/P is equal to 1/PE। जी आपका 1/PC मैंने क्या किया? इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, राइट? और P that approximately equal to PE, राइट? तो ये जो रैंकाइन लोड था, रैंकाइन लोड इन केस ऑफ बकलिंग, जो रैंकाइन ने लोड दिया था, P इज द रैंकाइन लोड इन केस ऑफ बकलिंग और इन केस ऑफ क्रिपलिंग। रैंकाइन क्रिपलिंग लोड आप कह सकते हैं, रैंकाइन बकलिंग लोड। दिस इज इक्वल टू द
बकलिंग लोड दैट इज गिवन बाय द एल्वर। ये चीज़ प्रूव हो गई आपको। लॉन्ग कॉलम में जो इक्वेशन रैनकाइन की कन्वर्ट होके बनेगी दैट इज इक्वल टू द बकलिंग लोड ऑफ द बकलिंग लोड दैट इज गिवन बाय द एल्वर। और शॉर्ट कॉलम के केस में दैट इज क्रशिंग लोड। यू अंडरस्टैंड। तो इस इक्वेशन से आपने देखा कि ये दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर ली कि लॉन्ग कॉलम आर दैट crippled or buckles according to the Ehlers formula, you understand, and short column that buckles are crippled as per the crushing load, you understand. So P is equal to P approaches to P, thus we can say long column buckles as per Ehlers theory of buckling। जो एलोर्स थ्योरी ऑफ बकलिंग दिया था तो लॉन्ग कॉलम तो उसके हिसाब से बकल होगा। यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जहाँ पे देखिए ये जो रैनकाइन ने ये जो इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन से आपने शॉर्ट कॉलम के लिए भी सिर्फ हमने इफेक्टिव लेंथ को कंसिडरेशन में किया, क्योंकि कॉलम की जो भी इफेक्टिव लेंथ होगी उसी से हम डिनोट कर पाएंगे वेदर दिस कॉलम इज शॉर्ट और वेदर दिस कॉलम इज लॉन्ग। यू अंडरस्टैंड। बेसिकली कॉलम का शॉर्ट और लॉन्ग तो स्लेंडरनेस रेशियो से वी हैव कैलकुलेटेड कि स्लेंडरनेस रेशियो इतनी होनी चाहिए, लैम्डा दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 89। बट इफेक्टिव लेंथ दैट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर। और इस इक्वेशंस को हम अगर हमें सिंप्लीफाई करना है इन बोथ द केसेस, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, तो इफेक्टिव लेंथ दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर। हाउ? इफ द कॉलम इज शॉर्ट, अगर कॉलम छोटा है, हमें पता है ये कॉलम छोटा है, इट इज़ ऑलरेडी टोल्ड अस दैट दिस इज ए शॉर्ट कॉलम एंड यू विल कैलकुलेट द क्रिपलिंग लोड of this column. So for that column is short means effective length is short. अगर effective length short होगी, you understand, तो आपको जैसे पता है PE inversely proportional to LE square। अगर effective length short है तो आपका जो buckling load होगा as per Ehlers theory of buckling वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। You understand? P is very very large. If the effective length is short, P is very very large, and 1 upon PE that is reciprocal of PE। तो 1 upon PE क्या होगा? अगर P very very large है तो 1 upon PE that is very 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 short। You understand? तो हमने क्या किया? हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। अगर 1 upon PE की वैल्यू एज कम्पेयर टू 1 upon PC से कंपेयर करें तो दिस इज वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल वन। So we neglected this value. So you can say P approaches to PC. That is buckling load given by the Rankine formula. This is almost equal to the crushing load. You understand? In case of short column, and this we have calculated from this relation that buckling load that is inversely proportional to LE square. दोनों cases में मैंने यही यूज़ किया। अब आइए ये लॉन्ग कॉलम के केस में। सो इन केस ऑफ लॉन्ग कॉलम यू नो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज लार्ज। जब इफेक्टिव लेंथ कॉलम की लार्ज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? जे अपान का जो आपका 1 upon PE है वो क्या होगा? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज लार्ज, तो PE आपका क्या है? P आपका स्मॉल होगा। लेंथ बढ़ेगी तो बकलिंग लोड एज पर एलोर्स उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी।
और अगर हमने इक्वेशन में रेसिप्रोकल ऑफ 1/PE देखें तो वो क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा। 1/PE दैट बिकम्स वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1/PC, और 1/PC को हम इस केस में क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन ये बच जाएगी। यू अंडरस्टैंड। तो ये जो सिंगल इक्वेशन आपने उसने दिया था एल्वर्स ने, 1/P is equal to 1/PC plus 1/PE, इस इक्वेशन से यू हैव सीन दैट दिस फार्मूला दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ द कॉलम्स, दैट इज द लॉन्ग कॉलम एज वेल एज द शॉर्ट कॉलम। यू अंडरस्टैंड। अब इस फार्मूले को हम ड्राइव भी कर लेंगे। Now, the equation is 1/P. This is equal to 1/PC plus 1/PE. This is as per Rankine formula. अभी हम इसको ड्राइव करके इस इक्वेशंस में एक कम्पैक्ट इसका फार्मूला बनाएंगे। यू अंडरस्टैंड। तो आप डेरिवेशन पार्ट आप कह सकते हैं इसका, or you can say 1/P, this is equal to PE plus PC into PE. You understand? इसको इस तरीके से LCM ले लिया मैंने, PC PE LCM आ गया तो ये आ गया। यू अंडरस्टैंड। और ऊपर ले जाइए, P दिस इज इक्वल टू PC PE डिवाइडेड बाई PE प्लस PC, राइट। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई PE, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका P दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप PE से डिवाइड करें तो दिस बिकम्स PC 1 प्लस दैट इज PE डिवाइडेड बाई PE 1 प्लस PC अपॉन PE। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका बन गया PE दिस इज इक्वल टू। यू अंडरस्टैंड दिस। इसको बॉक्स में रख लो। अब PC की क्या वैल्यू है, दैट इज क्रशिंग लोड, दिस इज इक्वल टू सिग्मा C into A, where sigma C is the yield strength of the material or crushing strength of the material and A is the cross-sectional area of the column. You understand? So stress into area, this is equal to the crushing load, PC. You understand? And PE, that you know already, it is pi square EI minimum LE square. You understand? Now substitute these two values in this equation. आप substitute कर लो। ये अगर इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी, मैं इसको इक्वेशन सेकंड लिखता हूँ, राइट। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ PC and PE in
इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो तो P बिकम्स क्या आ जाएगा, PC आप लिखेंगे सिग्मा C इंटू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस PC sigma C into A, and what is your P? That is pi square EI minimum LE square. You understand? Minimum LE square. जहाँ तक ठीक है? वैल्यू ऑफ इधर लिख लो, वैल्यूज ऑफ PC and PE in second. Now P, this is equal to sigma C into A divided by 1 plus LE square. ऊपर ले जाओ इसे आप, सिग्मा C इंटू A इंटू LE स्क्वायर एंड नीचे आ जाएगा पाई स्क्वायर E. व्हाट इज योर I मिनिमम? दिस इज AK स्क्वायर where K is the radius of gyration and A is the cross section area of the column. तो इसकी जगह I मिनिमम की जगह मैं लिख सकता हूँ AK स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड दिस? LE स्क्वायर तो मैं ऊपर ले गया, राइट? तो A एंड A ये आपका कैंसिल हो गया. अब P का वैल्यू क्या आया? सिग्मा C ऊपर वन प्लस सिग्मा C अपॉन पाई स्क्वायर E. सिग्मा C upon pi square E. So all these are the constant values. Sigma C upon pi square E ऐसे लिख लूँ, और ये आ गया LE स्क्वायर और K स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ LE अपॉन K का होल स्क्वायर. यू अंडरस्टैंड, राइट? इसको मिटा दीजिए. इस चीज़ को मैं आई कैन राइट इट, जहाँ मैं लिखूँगा इसमें, तो P की क्या वैल्यू आ जाएगी? P इज इक्वल टू सिग्मा C 1 plus, just see here, sigma C, that is the yield strength, this value is constant, pi is constant and E is constant. तो ये सारी वैल्यूज़ जो कांस्टेंट हैं, मैं इसको जहाँ पे A के साथ डिनोट करूँगा, एंड A इज़ द Rankine constant. You understand? A क्या है? Rankine constant, that is LE upon K upon whole square. So this is the formula. This is the Rankine formula for the crippling load in case of long column and short column. ये long column और short column के केस में अब जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू अगर मैं फॉर माइल्ड स्टील की बात करूं तो A की वैल्यू है आपकी 1.7500, राइट?
रॉट आयरन के केस में A इज 1900। इसी तरीके से कास्ट आयरन अगर है आपका मटेरियल, कास्ट आयरन, इसमें A की वैल्यू आपकी आई, A इज इक्वल टू 1/1600, राइट। अब दिस वैल्यू ऑफ A you should not calculate by putting the value of sigma C and E here. sigma C और E को पुट करके हमें ये वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना है। You understand this? Reason is because this is the empirical formula. ये जो Rankine formula था, that is the empirical formula, and the value of A for different type of materials, this is calculated by using the different type of experiments, right? तो इसका जो by the result of the different type of experiments, जो different type of experiments Reynolds ने किए, Rankines ने जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑन दैट बेसिस ही हैज़ कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ A. यू अंडरस्टैंड? तो ये याद रखना है कि A का वैल्यू, क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल्स होगा उसमें आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ का भी वैल्यू दिया होगा, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का भी वैल्यू दिया होगा, पाई तो आपका कांस्टेंट है, उसका वैल्यू भी आपके पास है। तो आपको A का वैल्यू इसको कैलकुलेट करके यू डोंट हैव टू फाइंड आउट। A का जो वैल्यू हमें मिला वो रैनकाइन्स ने, जैसे ये फार्मूला डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर जो रिज़ल्ट था उसको लेके ये फार्मूला उन्होंने एम्पिरिकल फार्मूला में दिया था। तो सेम जो वैल्यूज़ A की वैल्यूज़ थी, he has also calculated on the basis of the different type of experiments which he has done, and on the basis of that experiments ये जो वैल्यू थी आपकी A की for different type of material, जो मैंने जहाँ पे लिखा some values, for mild steel अगर है तो A का J है, wrought iron के लिए A is equal to 1/9000 है, cast iron के लिए A आपका 1/1600 है, आई थिंक वुड के लिए A is 1/750 like this. So different type of the values you can see from the chart also. So this is all about your Rankines formula, and you have, this is a very simple formula you have seen here, P is equal to, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे जहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल है, वैल्यूज़ पुट करनी है, बट वहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि Rankine फार्मूला का क्या, किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं, राइट। सो देखिए आप, so this is a very simple problem. एक एप्लीकेशन हमने लिया कि हाउ वी विल यूज़ द फार्मूलाज, किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। So first we will read the problem. This is the example in the book. A 1.5 meter long column, तो length of the column is given. तो आपको एक तो लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ कॉलम 1.5 मीटर, दैट इज़ mm में कन्वर्ट कर लो 1500 mm, यू अंडरस्टैंड। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो डेफिनेटली डायमीटर ऑफ कॉलम दिया है D, this is 5 centimeter or 50 mm you can say. One of the end of the column, जहाँ पे देखिए one of the end of the column is fixed and other end is free. तो कॉलम का क्या है,
ये इम्पोर्टेंट है लिखना, 1 end of the column is fixed and other end is free। तो इस केस में जो आपका इफेक्टिव लेंथ होगा कॉलम का, पीछे मैंने चार्ट दिया है पूरा डिटेल में, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, कंप्लीट चार्ट दिया था। 1 end इज़ फिक्स्ड, अदर एंड इज़ फ्री, बोथ द एंड्स आर हिंज्ड, बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। तो आप पिछला प्रीवियस लेक्चर मेरा देखिए वहाँ पे। तो आपको जो इफेक्टिव लेंथ होगी इस केस में, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, इफेक्टिव लेंथ of the column LE किसके बराबर है? 2 into L। L is the actual length। तो effective length in case of this, अगर ये आपको कंडीशन दिया है, one end of the column is fixed and the other end is free, if this condition is given, one end of the column is fixed and the other end is free, in that case LE is equal to 2L। यू अंडरस्टैंड? तो जहाँ से आपको LE आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ आप कैलकुलेट कर लें एज पर द डाटा जो दिया है। तो LE क्या आएगा? 2 into 1500, दिस इज 3000 mm। यू अंडरस्टैंड? तो LE आपका आ गया ये 3000 mm। टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 3। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वो हमें फाइंड आउट करना है सेफ लोड। सेफ लोड ऑफ बकलिंग हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों फार्मूले यूज़ करके, रैनकाइंड फार्मूला यूज़ करके, उसमें अगर रैनकाइंड फार्मूला यूज़ करते हैं तो वैल्यूज़ दिया है उसने रैनकाइंड फार्मूला में, ये नोट कर लीजिए, सिग्मा सी यील्ड स्ट्रेंथ जो मटेरियल का है, दिस इज गिवन एज 560 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। दिस इज पर mm स्क्वायर, नॉट मीटर स्क्वायर। न्यूटन 560 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड ए का वैल्यू भी दिया है, ए दिया है रैनकाइंड कांस्टेंट 116 है, मीन्स ये कास्ट आयरन मटेरियल है, राइट। तो एलोर्स थ्योरी में, एलोर्स फार्मूला अगर आपने यूज़ करना है सेकंड, पहले तो हमने सेफ लोड निकालना है रैनकाइंड फार्मूला से, सेकंड हमने निकालना है एलोर्स फार्मूला से, राइट। और उसमें आपको ये कास्ट आयरन है नेचुरली 1/1600, दिस इज़ फॉर कास्ट आयरन। तो ई का वैल्यू दिया है यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी 1.2 into 10⁵ न्यूटन पर, राइट। सो दीज वैल्यूज आर गिवन टू यू, ये वैल्यूज आपको गिवन है। दिस इज गिवन। अब आ जाइए, सेफ लोड हमने निकालना है, पहले इसको मिटा दीजिए आप। पहले फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द सेफ लोड बाय रैनकाइंड फार्मूला। फर्स्ट हम निकालेंगे सेफ लोड बाय रैनकाइंड
तो कुछ वैल्यूज़ जो यूज़ होने वाली हैं उन वैल्यूज़ को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो ए निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज π/4 इंटू डी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू π/4 इंटू 5 का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और हमें किस में लेना है, हमें लेना है आपका mm स्क्वायर में। सो दिस इज इक्वल टू 19.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब mm में लेना तो 19.63 to 10⁻² mm स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने निकाल लिया, राइट। इसी तरीके से आप आई निकाल लीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू तो यूज़ होगी इसमें आई। फॉर सर्कुलर कॉलम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज सर्कुलर, सो फॉर सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/64 इंटू d4, यू अंडरस्टैंड। d इज द डायमीटर ऑफ द कॉलम, π/64 इंटू d4। तो ये वैल्यू आप पुट कर लो, आप π/64 5⁻⁴ ये आपको सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 4 में देगा। mm4 में निकालना है वैल्यू, तो कैलकुलेट करके बताइए मुझे। दिस इज 30.7 इंटू 10⁻⁴ mm स्क्वायर। बिकॉज ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आना था, कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू अंडरस्टैंड। कैलकुलेट करें, चेक कर लीजिए। आप तीसरा रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ये भी वैल्यू यूज़ होगा के। दिस इज रूट ऑफ I/A। के का क्या होगा, बिकॉज I इज इक्वल टू AK स्क्वायर, तो जहाँ से आप के का वैल्यू निकालें √of I/A, तो I आपका है, दिस इज 30.7 10⁻⁴ एंड एरिया तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो के का वैल्यू आएगा आपके पास, आई थिंक 12.5 mm। तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ इसकी निकाल ली, यू अंडरस्टैंड, राइट। नाउ यूज़, अब हमें निकालना है सेफ लोड बाय रैनकाइन फार्मूला। पहले हम रैनकाइन फार्मूला से सेफ लोड इसका निकाल लेंगे, यू अंडरस्टैंड। इसको मिटा दीजिए आप, ये सिग्मा सी का वैल्यू रहने दीजिए। तो ये फर्स्ट था सेफ लोड बाय रैनकाइन्स फार्मूला। तो सेफ लोड क्या होता है, सेफ लोड आपका है बकलिंग लोड डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये लिखो बकलिंग, क्रिपलिंग कर लो, क्रिपलिंग लोड
डिवाइडेड बाई FOS। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है तो इसका मतलब हमें क्रिपलिंग लोड बाय रैनकाइन फार्मूला वी हैव टू फाइंड आउट। तो आप कह सकते हैं क्रिपलिंग लोड बाय रैनकाइन क्या है? दिस इज P इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू A 1 प्लस A LE अपॉन K का होल स्क्वायर, राइट। जी आपका P होगा, इसमें सारी वैल्यू रख दीजिए आप। P क्या है? P इज द क्रिपलिंग लोड बाय रैनकाइन फार्मूला। तो इसमें वैल्यू रखिए। व्हाट इज योर सिग्मा C? 560। एरिया वी हैव कैलकुलेटेड 19.63 डिवाइडेड बाई 1 प्लस A का वैल्यू दिया है 1/1600। LE क्या था आपका? 3000 एंड K आपका क्या है? 12.5। दिस इज द होल स्क्वायर, राइट। इससे आप कैलकुलेट कर लो। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P। कैलकुलेट करें उसको कैलकुलेटर से। तो P का वैल्यू आपका आ जाएगा 29708.1 न्यूटन। 297 P इज इक्वल टू 29708.1 297 कैलकुलेट करें 08 29708.1 Newton, right? This is your P, and if you have to find the buckling load here, sorry, safe load, ये आपका क्या आया? P आया था। तो अब safe load क्या होगा? इससे डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी करें। दैट इज 2970। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? 3। डिवाइड करने के बाद आपका सेफ लोड आ जाएगा 9 समथिंग। देखिए कैलकुलेट करके बताइए। 9902.7 Newton. So this is equal to 99 अंडरस्टैंड। ये सेफ लोड आया जो हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द रैनकाइन मेथड। आप इसी तरीके से वी विल कैलकुलेट सेफ लोड बाय यूजिंग द एल्वर्ट्स फार्मूला। तो ये नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं आपका। तो ये आ गया 9902.7 न्यूटन। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है सेफ लोड बाय यूजिंग
एलोअर्स तो जहाँ पे भी क्या करेंगे हम, बाई यूजिंग द एलोअर फार्मूला फर्स्ट हम वी विल कैलकुलेट द बकलिंग लोड। तो बकलिंग लोड इस केस में क्या आएगा, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम L E square, right? This is the formula for the buckling load in case of Ehlers formula। तो वैल्यू पुट कर लीजिए जहाँ पे जो दिया है, ये आपका आ गया पाई स्क्वायर E का वैल्यू दिया है 1.2 इंटू 10⁵ आई मिनिमम जो हमने कैलकुलेट किया था, मिनिमम मैक्सिमम सेम होगा बिकॉज दिस इज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, that is 30.7 10⁴ divided by LE क्या था 3000 स्क्वायर। तो कैलकुलेट करने के बाद मुझे बताइए, टेल मी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड इन केस ऑफ एलोअर फार्मूला। सो दिस इज 40200 न्यूटन, दिस इज 40, therefore सेफ लोड इस केस में क्या आएगा, बकलिंग लोड डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज बकलिंग लोड क्या है, and this is equal to how much, this is equal to so this is the question we have which we have done for the Rankine formula. So I will suggest you one thing that there are number of examples in the standard books जो आप यूज़ करते हैं, वहाँ से फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, सम पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स दिए होंगे, तो प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे कीजिए। जहाँ पे मैं सारी प्रॉब्लम्स नहीं करवा सकता क्योंकि कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, लंबी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए टाइम का जहाँ पे वेस्टेज होगा, बट जो मैंने आपको बताया जहाँ पे कि हाउ वी विल यूज़ दिस फार्मूला, तो इस तरीके से आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से, जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, लेक्चर में भी बताया था, न्यूमेरिकल करने से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें क्लियर होंगी जब आप थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पे वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। सो न्यूमेरिकल्स आपको कहीं भी मिलें, स्टैंडर्ड बुक्स में मिलें, कहीं भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, जितना मैक्सिमम आप उसके रिगार्डिंग, कोई भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आप प्रैक्टिकल, उसको मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करता हूँ। न्यूमेरिकल्स क्या है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं कि आपको अगर ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिलता है तो आपने दिस पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट करना, तो वो कैसे करेंगे। डोंट थिंक दैट दिस इज़ न्यूमेरिकल, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर जो आपने थ्योरी पढ़ा, नॉट लाइक दैट। आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, बीइंग एन इंजीनियर, अल्टीमेटली यू हैव टू विजुलाइज दिस विद द प्रैक्टिकल वे। और जो आपको न्यूमेरिकल्स जहाँ पे डिफरेंट बुक्स में दिए होते हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और ख़ासकर कन्वेंशनल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए। रही आपका गेट का, और दूसरे वहाँ पे तो एक छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, और अगर आपको चैप्टर का पूरा नॉलेज है, न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे तरीके से किए हैं, तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। और जो आपको गेट में जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, कंसेप्चुअल आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, दैट यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, यू अंडरस्टैंड। तो अगर इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर द हायर गेट के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी किसी या एई जेई के जो भी प्रोफेशनल पेपर्स हैं उनके लिए, तो मैं तो आपको ये चीज़ सुजेस्ट करूँगा,
कोई भी टॉपिक करें, उस टॉपिक से पहले जो भी न्यूमरस नंबर ऑफ द एग्जाम्पल्स यू विल गेट इन द डिफरेंट स्टैंडर्ड वर्क्स, आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कीजिए। नो डाउट कि वैसे न्यूमेरिकल्स आपको जो आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। तो जो भी न्यूमेरिकल्स वहाँ पे आएगा वो आपको एक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो वैसे न्यूमेरिकल्स भी हम करवा रहे हैं, राइट। तो वैसे भी जो कंसेप्ट के वैसे भी करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पूरा डेप्थ में अंडरस्टैंड करना है, दिस इज़ माई सजेशन टू यू, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जामिनेशन। उसकी तो आप तैयारी उस हिसाब से कीजिए, लेकिन अगर आपने किसी चैप्टर में मास्टरी करनी है तो उसमें आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स बुक्स में मिलती हैं उनको आप अपने हाथों से कीजिए, तो उससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। यू अंडरस्टैंड। तो आज ये रैंकाइन का मैंने लिया था। अब लास्ट जो इसमें मैं लूँगा एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉलम्स, राइट। एसेंट्रिक कॉलम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये था कि मैं दोनों जो टॉपिक हैं इसको क्लब कर ले लूँ, रैंकाइन्स फार्मूला और एसेंट्रिक कॉलम, बट वो चैप्टर भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और कॉलम्स के ऊपर आप इतना फोकस भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी रैंकाइन फार्मूला में आप लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसकी डेरिवेशंस में आगे भी उसकी बड़ी डेरिवेशन है, जो आपका एसेंट्रिक लोडिंग आप इन केस ऑफ कॉलम में पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी कैलकुलेशंस हैं, डेरिवेशंस हैं। तो इसलिए मैंने जो बेटर समझा कि रैंकाइन फार्मूले का के ऊपर सेपरेट लेक्चर आपको दे दूं और जो एसेंट्रिक लोडिंग आपका है ऑफ द कॉलम उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर दे दी, राइट। तो नेक्स्ट जो है वो आपका एसेंट्रिक लोडिंग ऑफ द कॉलम के ऊपर मेरा लेक्चर होगा। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। और सारी चीज़ें रैंकाइन फार्मूला, देखिए ये बड़ा सिंपल है, बुक में देखेंगे बड़ा सिंपल डेरिवेशन की कुछ, लेकिन इसका मेन चीज़ होती है उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। तो मैंने कोशिश किया है कि इसके सारे कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ फॉर टुडे ओनली। नेक्स्ट लेक्चर जैसे मैंने आपको बताया एसेंट्रिक लोडिंग, दैट इज़ द another lecture on different day. So thank you very much.